Hi, good evening everyone. So welcome to this special session which I have planned for all the IPMAT and other BBA entrance exam aspirants in 2022 so that you can understand what is the right study plan for you and how can you crack IPMAT for Indore, Rohtak and Jammu, Bodh Gaya and others, right? So quickly show me a thumbs up if all of you can hear me and if audio and video is fine so that we can get going, guys. Right, and let me tell you, I'm going to keep this kind of sessions now on a frequent basis so that you can get regular guidance because many of you would be in your 12th standard. Few will be those who have already taken a drop, but those who are in the 12th standard, they have the boards to manage. This time it is going to be in 2 terms. Right, so if you are part of that CBSE pattern, so you will have your board exam, first term board exam somewhere in the November, December, and then second term board exam somewhere in the month of April. So you might be apprehensive about what will be the IPMAT date. So we are going to discuss that. What is the syllabus? What is the paper pattern? What are the cutoffs? And which other colleges should I target along with IPMAT? So we are going to discuss everything over here. Hi, good evening. Yeah, Rishabh will discuss towards the end. Can you please park that question because those who have taken a drop or those who are planning to take the drop might be wondering, okay, is it a good idea to take a drop or should I look forward? Should I just go ahead with my BCom or BBA and then target CAT afterwards and get into IIM? So we'll discuss on that. My short answer will be do not just take a drop unless you have missed that IPM cutoff by a whisker this time. Otherwise, if you are preparing for the first time, I'll suggest that you enroll yourself in some BCom or BBA program and simultaneously you can prepare for IPMAT and you can give a try, because even if it doesn't work for CAT preparation, the same for CAT exam the same preparation will be useful, right? That's my short answer, but again we'll have a detailed discussion towards the end. Yes, hi, good evening. So I can see many students over here. Hi Shabir, Bhavya, hi Lakshya, hi Rishi, Yash, Sanchit, Spandan, Rishabh. Hello, hi Aditya, good evening. Yeah, it's okay Aditya. I mean, people fail. So that's perfectly fine if you appear for IPMAT 2021 and if you fail. But you need to understand by what margin did you fail. Was it just a small margin of about 5-10 marks or it was by a huge margin? Right? That is what you should be looking at rather. Okay. Hi, so I think everyone is ready. Let's go ahead with the session. Everyone. Fine. So what are we going to discuss as part of this session? I'll definitely introduce myself also. But before that, guys, we are going to discuss these points. Paper pattern of IPMAT, various IPMAT. Indore and Rohtak, I have taken, of course, JIPMAT I haven't included, but we will discuss that also. Then the cutoffs. What were the cutoffs for the various IPMAT exam? Okay, and the exam dates in 2022, what is the expected calendar? So we'll discuss about that. Then what is the syllabus? Because this is something that many students have confusion about. You know, there is a misconception that IPMAT Indore has lots of higher mathematics. Guys, first of all, what is the definition of higher mathematics? So we'll understand that as well. Okay. Then what is the 8-month study plan? What should be the ideal timetable? How many hours should I spend in a day? Okay, and books and study material for practice. Which book should I refer to? How can I get the practice question and all? And apart from that, of course, revision is very, very important. And at the same time, you should be writing mock test. Many of you leave mock test part towards the end, but I suggest that you start writing from this point of time. Okay. The simple reason why I always emphasize on the mock test, guys, I don't know how many of you, whether you had an opportunity to see the IPMAT 2021 question, but there was a question that there is a 4-digit number. Okay, there is a 4-digit number. And then the question was, what can be the maximum possible ratio? What can be the maximum possible ratio? Okay, of the number and sum of the digits of that number, sum of digits of the number. Now guys, let me tell you, I mean, for such questions you really don't need to have detailed practice. I mean, you can just even think right now, and this is what I want you to understand when you take mock test from this point of time. Even if you can solve 4-5 such questions which are more of common sense based question,
general number based question, guys, that will definitely give you a good edge compared to others. Okay, so when you are taking mock test at this stage, even if you have just started your preparation, you can still tackle such question with a basic understanding to the numbers, right? Guys, have you seen this question? Just type yes in the chat box if you have seen this. Right, we will discuss this question. I'll tell you how easy this question was. No, Rishabh. 999 divided by 36. Rishabh, what will be that total? Now, since you have mentioned the answer, what will be the answer? Can I say definitely it will be less than 1000? Isn't that less than 1000 the ratio that Rishabh has mentioned, the number that Rishabh has taken? See, here you don't need to take the maximum number. Okay, you need to find out the maximum possible ratio. Guys, you need to find out the maximum possible ratio. So instead of going so far, okay, instead, Rishabh, can't I take it this way? 1000 divided by 1, the ratio will be 1000. Isn't that? Exactly, Rishabh. Now, this is what you should be thinking. Isn't that a very simple question, dosto? See, of course, initially you will think of 4 times 9, but later on, when you think in detail, you will figure out the solution. So, guys, I can give you many such questions which you could have solved even if you are just decent at maths. If you have that habit of solving puzzles, trying your mind at whatever new situation comes, I'm sure you can tackle it, right? Aryan, it doesn't matter whether you are starting from today or you are starting 4 months back. What matters the most is what is your thinking capability. If you are someone who doesn't think beyond the limits, trust me, even if you spend 2 years, you will not clear IPMAT, because IPMAT is more like a logical exam. Okay? It's not an IIT JEE kind of exam. It's not a technical exam. It actually tests your quantitative, your aptitude. Okay? So please understand that. So if you have that knack of solving puzzles and all, if you enjoy numbers, trust me, you start from this point of time, you can easily manage your boards as well as your IPMAT preparation. So this is what I'm going to guide you guys in this particular session. We will also discuss about other BBA entrance test. Guys, this OBATS is the term which is coined by me. Okay, so that stands for other BBA entrance test. Okay, so I'm looking forward to others adopting this particular term, right? Sir, is Hindi allowed in IPMAT in interview? There is nothing like allowed or not allowed, but it doesn't create a good impression because English is the language for business communication. You need to understand that. ठीक है? So guys, काफी लोग business हिंदी में करते हैं, मतलब उनका business हो जाता है, लेकिन you are limiting yourself to only the Indian economy, right? If you are willing to operate at the global level, you need to have good command of over this language. And yeah, that's the reason they expect you to speak in English. And if you look at the paper is also conducted in English. Okay, but instead if you look at some the other competitive exams, they are conducted in Hindi. But this is slightly different. This is for business management. Okay, sir, how is Nirma University College of Commerce not NMIMS as a backup? Spandan, so Nirma University itself is a good brand for commerce, for BBA. Of course, you can check if you are getting over there. Definitely, you can go for that. So, term-wise 12th exam. Right, we'll discuss on that. Fine, guys. So, in case if you are new to my session, this is once again a bit about myself. So, my name is Ronak Shah, and this is my educational background. These are the subjects for which I prepare students, including the interview, right? And you can also stay connected with me. You can join my Telegram group. It's Unacademy_Ronak Shah. You will find the link in the description. Also, do not forget to like this video and please share it with your friends and stay connected. Okay, guys, apart from that, for your preparation of IPMAT, I have started this batch called Genesis batch. I'll tell you that CAT and IPMAT quant syllabus is more or less same. There are a couple of additional topics in IPMAT which are not there in CAT. मतलब आपका सारा ऑलमोस्ट सिलेबस यहाँ पे बैच में कवर हो जाएगा. तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो जेनेसिस बैच. ठीक है, इसमें मैं बेसिक से करा रहा हूँ आपको.
सो इसके सेशंस कब होते हैं? मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे शाम को 6 बजे होते हैं। उसके अलावा LRDI के सेशंस होते हैं। नाउ दिस LRDI इज स्लाइटली मोर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स लाइक IPMAT Rohtak, JIPMAT and CAT kind of exam. But still, as I said that this preparation tests your logical capability, so there is no harm even you attending this session. I also provide daily practice problems, so please keep attending the sessions. Many of you are already doing it. Yash is asking, sir, is there any chapter wise mock test available online? यश चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं ना, पहले तो उसको जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उसको यूनिट टेस्ट कहते हैं। मॉक टेस्ट आर द रेप्लिका ऑफ एक्चुअल एग्जाम, गाइस उसको मॉक टेस्ट कहते हैं। सेक्शनल टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट के अलग अलग सेक्शन जो होते हैं या एक्चुअल एग्जाम के जो अलग अलग सेक्शन होते हैं वो उसमें आते हैं। बट मॉक टेस्ट जो टर्म है वो पूरे एग्जाम को रिफर करने के लिए यूज होता है। Are you getting this point? So just stay clear about that. Now guys, let's quickly understand IPMAT 2021 pattern. So guys, IPMAT 2021 में 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर के थे। 30 minutes marking scheme for this one was +40. Then MCQ questions थे 30 minutes again marking scheme for this one was +4 -1. And verbal ability के MCQ questions थे 30 marking scheme was again +4 -1. तो टोटल अगर आप देखोगे आपका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन का पेपर था, 240 मार्क्स थे, ठीक है, 240 मार्क्स थे। इनफैक्ट लाइक नाउ दिस वाज द 2021 पेपर, बिकॉज ऑफ कोविड द पेपर वाज अ शॉर्टन वर्जन। तो प्रीवियस उसके कट ऑफ क्या थे वो आपको बता देता हूं। तो ये इस साल के एक्चुअल कट ऑफ है जो IIM ने डिस्क्लोज किए थे। जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, आप बाकी के कैटेगरी खुद से देख सकते हो। सो गाइस, जनरल कैटेगरी में जो आपका क्वांट का कट ऑफ था वो 16 था, क्वांट का जो MCQ सेक्शन का कट ऑफ 21 था, एंड वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ 70 मार्क्स का था, राइट। टोटल कट ऑफ कुछ 108 मार्क्स के आसपास था। इट वाज अराउंड 108 मार्क्स ओवरऑल कट ऑफ फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल इट वाज अगेन स्लाइटली लोअर, ठीक है। सो दिस वर द कट ऑफ्स, राइट, ओके। एंड जस्ट टू क्विकली टेल यू अबाउट the previous years cut off of the इंदौर पेपर, जब वो आपका 400 मार्क्स का पेपर आता है। नॉर्मली पेपर आपका 400 मार्क्स का आता है, 60 क्वांट, ठीक है, एंड 40 वर्बल। ये 60 क्वांट में भी 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड अनदर 40 क्वेश्चन MCQ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहता है, राइट, ओके। और उस टाइम पे अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ अगेन बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं दोस्तों। आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ देखो, शॉर्ट आंसर सेक्शन या फिर वर्बल एबिलिटी या फिर क्वांट सेक्शन के कट ऑफ तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, राइट। सर इफ यू क्लियर मेन कट ऑफ, इज क्लियरिंग सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो नेसेसरी? एब्सोल्युटली करेक्ट। Middle class army saying why this class caste system. So that is not the subject of discussion right now. You can probably discuss that on different forum. My objective is to just give you the information whatever system exists, okay. Now guys, IPMAT Rohtak की अगर बात करते हैं तो 2021 का पेपर आपका सेम ही था, 120 क्वेश्चन एंड ऑल। बट अगर आप कट ऑफ्स यहाँ पे पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे, ऐसा ही कुछ पेपर आपका 2021 का भी था, ठीक है, या ये 2020 का है। 2021 में वापस आपका नॉर्मल पेपर था, राइट। सो गाइज ये आपका 2021 का ऐसा पेपर था जैसा 2019 का था, और 2020 में शॉर्टन वर्जन था जो अभी आगे नहीं आने वाला है। 40 एंड यू गेट 40 मिनट्स टाइम फॉर ईच सेक्शन, राइट। देयर इज ऑलवेज अ सेक्शनल टाइम लिमिट, ओके। कट ऑफ की अगर बात करें, सो IPMAT रोहतक के कट ऑफ कुछ 280 के आसपास थे, 280 और 260 के आसपास कुछ कट ऑफ थे। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ओवरऑल कट ऑफ, उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं थे, दैट वाज जस्ट ओवरऑल कट ऑफ। IPMAT इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ है, ओके। सो अश्मिता हैज मेंशन गाइज 265 था, 256 था। आई रिमेंबर इट वाज समवेयर अराउंड 260, सो इट वाज 265, फाइन, ठीक है। यू कैन ऑलवेज चेक, इट्स अवेलेबल ऑन पब्लिक फोरम। काफी लोग 256 कह रहे हैं, लक्ष्य कह रहा है 256, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, ओके। हाँ, IPMAT इंदौर 2021 में 240 मार्क्स का था, 60 क्वेश्चन 240 मार्क्स। IPMAT रोहतक 480 मार्क्स का था, दिस वाज अ 480 मार्क्स, ओके।
तो ये आपको कट ऑफ पता चल गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम गाइस. आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम. ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम हो. इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. तो आप है ना क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो उसको समझने की कोशिश करो. फैकल्टी चाहे मैं हूं चाहे XYZ फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, यू ट्राई टू थिंक योर ओन वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एंड दैट्स द बेस्ट अप्रोच टू क्लियर दिस एग्जाम. यू नो अनलाइक योर बोर्ड पेपर्स में कैसा रहता है, आप पिछले 10 साल के पेपर देख लोगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं. बट ये IPMAT इंदौर और रोहतक और ये सारे जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स है इसके अंदर इनोवेटिव क्वेश्चंस आते रहेंगे. यू शुड एंजॉय डूइंग दैट, राइट. ओके, कभी आपसे कोई नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई सॉल्व नहीं होगा, तो उस केस में अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट अल्टीमेटली आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये समझ लिया आपने. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ. बट बिफोर दैट गाइस, जस्ट वांट टू टेल यू दिस इज अ मैसेज फ्रॉम Unacademy दैट वी हैव दिस 2 years comprehensive batches. So if you are targeting 2023, definitely you can go for that. I along with many other faculties we cover all the subject. जैसे DU-JET है उसके अंदर स्पेसिफिकली काफी सारे हायर मैथ्स के टॉपिक आते हैं. वेक्टर हो गया, लिमिट्स हो गई, कैलकुलस हो गया एंड सो एंड सो फोर्थ. तो इवन हायर मैथ्स भी उसमें कवर हो जाता है. मॉक टेस्ट, PI प्रेप, रेगुलर यूनिट टेस्ट, ये सारा आपको मिलता है यहाँ पे. Similarly, 1 year batches are available. So guys, go for that. Very economical plans. It will cost you around 18,000 after you have applied this code. तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरा कोड अप्लाई करना मत भूलना, शाह10. और अगर आपको मेरे साथ बात करनी है सब्सक्रिप्शन के बारे में तो यू कैन पिंग मी ऑन माई ग्रुप. You can directly DM me at Ronak_live. Okay, sure. And this is what you get when you go for plus subscription. Just for your quick reference. Now guys, IPMAT 2022 के डेट्स क्या हो गए? Now this is the main question. आपके पास कितना समय है? तो let's understand. Now this year जो आपके CBSE एग्जाम की अगर बात करें 2 पार्ट में हो रहा है. CBSE टर्म 1, मैं CBSE बोर्ड को अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, एंड टर्म 2. सो दिस इज हैपनिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर. आपको पता होगा कि जो CBSE बॉडी है उन्होंने स्कूल को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने डेट्स पिक कर सकते हो. सो आप सबके कोई यूनिफॉर्म डेट्स नहीं होंगे. किसी का डेट नवंबर में हो सकता है, किसी का दिसंबर में होगा. आपकी स्कूल क्या डेट सेलेक्ट कर रही है उसके ऊपर है. नेक्स्ट मंथ तक मतलब अक्टूबर तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. 1st और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर आपके पास में प्रॉपर डेट शीट आ जाएगी. सिमिलरली टर्म 2 इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. ठीक है. तो मुझे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है आपके IPM के और जो दूसरे सिम्बायोसिस के, ठीक है, IPMAT ले लो, SET ले लो, NPAT ले लो, ये सारे आपके मई में हो गए ऑलमोस्ट. आप कह सकते हो आफ्टर दिस एग्जाम्स आर ओवर. सो एग्जैक्टली जब इनके डेट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो उसके बीच में रख ही नहीं सकते, उनको CBSE को उनका विंडो पीरियड खत्म करने देना पड़ेगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू गो ऑन ओवर 2 months. ठीक है ना. तो जब तक सारे एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, मतलब जो विंडो खत्म नहीं होता है CBSE टर्म 2 का एग्जाम का, तब तक ये लोग नहीं रखेंगे, राइट. ओके, सो गाइज इस बार आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है समवेयर इन द मंथ ऑफ मई. IPMAT, ठीक है, IPMAT इंदौर ले लो, रोहतक ले लो, JIPMAT ले लो. एंड नॉर्मली वो संडे को रखते हैं. तो अगर इंदौर ने फर्स्ट संडे रख लिया तो रोहतक सेकंड संडे ले लेगा, JIPMAT थर्ड संडे ले लेगा. तो म्यूचुअली डिसाइड, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉर्निंग में इंदौर का पेपर, आफ्टरनून में रोहतक का पेपर, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लेते हैं. सर इज देयर एनी चांस ऑफ यूनिफॉर्म एग्जाम फॉर IPM ऑफ ऑल IIMs? ऋषभ, मतलब हर एक चीज की पॉसिबिलिटी रहती है, बट आई डोंट सी, क्योंकि अगर उनको करना होता, रोहतक भी तो काफी सालों से हो रहा है, तो अगर उनको करना होता तो अब तक कर लेते. दे कुड हैव ऑलरेडी शूक हैंड बाय नाउ. तो मतलब हर किसी का अपना कुछ है. ठीक है, लेट्स होप कि आगे जैसे CAT हो रहा है वैसे ही IPMAT हो जाए. फाइन. नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस. सो व्हाट इज द सिलेबस? सो गाइस सिलेबस की अगर बात करें तो नंबर्स में आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं. ठीक है, फिर अगर अलजेब्रा की बात करें तो ये टॉपिक्स है आपके अलजेब्रा के. ये सारे नॉर्मल टॉपिक्स है, इसको मैं हायर मैथ्स में नहीं रख रहा हूं गाइस, ये इसको मैं नॉर्मल मैथ्स कह रहा हूं. अब अगर आप इसको हायर मैथ्स कह रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, फिर अगर ये एरिथमेटिक करे, बहुत ही सिंपल है, इसको तो हायर मैथ्स में रख ही नहीं सकते. ज्योमेट्री नॉर्मल है. सिर्फ ये कुछ टॉपिक है. अब काफी सारे बुक्स में प्रोग्रेशन, फंक्शंस, लॉगरिदम वगैरह को हायर मैथ्स में रखा हुआ है. व्हाट आई कंसीडर दिस एज वेरी नॉर्मल सब्जेक्ट्स
ठीक है। नॉर्मल टॉपिक्स सिर्फ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस है, कैलकुलस तो आता नहीं है, जैसे 2021 में कैलकुलस नहीं था, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स है जैसे डी जेट में आते हैं, लिमिट्स, वेक्टर्स एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारा आप हायर मैथ्स कह सकते हो, बट इसका वेटेज बहुत कम है। डिटर्मिनेंट के 2 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, तो आप वो एक टॉपिक कर सकते हो। बाकी सारी ये टॉपिक तो मैं अपने क्लासेस में करा देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ हायर मैथ्स फैकल्टी बाय द वे, तो भी मैं ये करा देता हूँ, राइट। ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काफी लोग हायर मैथ्स में रखते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई इतना ज्यादा टफ पार्ट है, राइट। सर इस कैलकुलस पार्ट ऑफ आईपीमैट काफी जगह मेंशन्ड है, कैलकुलस इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ऋषभ उसका पता है प्रॉब्लम क्या है? 2020 में एक क्वेश्चन कैलकुलस का आया था। अब 2020 का पेपर देखता हूं, उसमें एक क्वेश्चन कैलकुलस का आया था, उसके ऊपर सब लोगों ने उसका हाइप बना दिया है। मेरे हिसाब से आपको कैलकुलस, देखो कैलकुलस कैसा है, इधर यू आर अ साइंस पीसीएम स्टूडेंट, यू आर ऑलरेडी डूइंग कैलकुलस, तो फिर आपके लिए कोई इतना चैलेंज नहीं होगा। इफ यू आर नॉट अ पीसीएम स्टूडेंट, तो आप उसके लिए पूरा कैलकुलस करने नहीं बैठोगे, उतना टाइम आप ये सब्जेक्ट्स पे स्पेंड करो, एंड यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योर बोर्ड स्टडीज, राइट। अनलेस यू आर अ ड्रॉपर, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहोगे, बट फॉर अ रेगुलर स्टूडेंट इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आप उस पर मत ज्यादा करना। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आप कर लेना, वो तो आपको यहाँ पे हम अनअकैडमी में, अगर आप प्लस कोर्स में हो तो हम करा ही देते हैं, राइट। सर व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलस? एब्सोल्युटली आर्यन, ठीक है ना। ओके सर, आई एम उदयपुर एंड आई एम बैंगलोर स्टार्टिंग आईपीएम। नो शीतल, आई एम बैंगलोर इज नो वे स्टार्टिंग आईपीएम, आई कैन टेल यू। आई एम बैंगलोर आज से आप 5 साल में देख लो, वो आईपीएम नहीं शुरू कर रही है, यू टेक माई वर्ड। आई एम अहमदाबाद का अभी तक तो नहीं है, और आई एम अहमदाबाद वैसी कॉलेज नहीं है कि एकदम से कल उठ के सुबह कहेंगे हम लोग आईपीएम शुरू करते थे। वेरी प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दे डोंट मेक द अनाउंसमेंट अ मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, दे प्लान थिंग्स, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि आईपीएम इज एनीवेयर इन देयर प्लान ऑफ एक्शंस। ओके, अभी क्लियर? फाइन। चलो गाइस, तो क्वांट का सिलेबस हमने देख लिया। अब एलआरडीआई का सिलेबस क्या है, मैंने एक बहुत ही डिटेल चार्ट बनाया आपके लिए। आप सिर्फ ये चार्ट को देख लेना, इसमें ग्रीन कलर मतलब इंपॉर्टेंट है, येलो कलर मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइज आपको पता है इंदौर में तो आपका बिल्कुल आता ही नहीं है, एलआर आता ही नहीं है। तो रोहतक, जेआईपीमैट, डीयूजेट, एसईटी, एनपैट, अदर्स, तो मैंने आपके लिए एक सिंपल चार्ट बना दिया है। आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। आप इतने टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी इसके बाहर कभी कोई लॉजिकल पजल आ सकता है, बट देन ज्यादातर टॉपिक इसके आसपास घूमते हैं, राइट। ओके, मैं प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट द लाइक बटन फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है, कम ऑन गाइज यार, इतना लाइक तो बनता है, यू नो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी अवेलेबल, ये वीडियो यहां पे अवेलेबल रहेगा, राइट। सो आर्यन इज आस्किंग सर, इज एनीबडी कैन क्लियर बाय सेल्फ प्रिपरेशन विदाउट टेकिंग कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन? आर्यन देखो कैसा है, I'll give you a simple example. Anybody can prepare paneer butter masala at home. The recipe is available online. But when I prepare it, I'll have lots of confusion. I may end up wasting lots of time and lots of utensils. Exactly the same way, the experts have complete idea about what to impart, how to impart, and so on and so forth, right? And you will require that guidance. So you do not join coaching academy only to attend those sessions. You join it to get guidance, to get the test series, to get the interview preparation, and a structured preparation rather. So now you can decide. Okay, it's completely up to you. Now guys, VARC का मैंने यहाँ पे mention नहीं किए, but आपको पता है RC, then para jumbled, ठीक है, para jumbled, then paragraph summary, right? देन ऑफकोर्स अब ये आपका इसमें आता है। अच्छा, इंदौर में भी ग्रामर वगैरह आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई एम नॉट द फैकल्टी, सो आई कांट कमेंट मच। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कुछ और में और ज्यादा डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, तो आपको वर्बल के फैकल्टी वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताएंगे, बट आई एम नॉट कमेंटिंग मच ऑन VRC राइट नाउ। स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, स्पेशली इफ यू आर इन 12th राइट नाउ,
इन 12th नाउ, तो आपके पास डेफिनेटली टाइम की कंस्ट्रेंट होगी. सो गाइज यू कैन फॉलो दिस 2-2 स्ट्रेटेजी फॉर अबाउट 5 days अ वीक. 5 days अ वीक मतलब आप क्या करो, एक प्लान बना दो, 2 घंटा सेशन अटेंड करो, सेशंस अटेंड करो एंड 2 घंटा प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस. सो दिस इज व्हाई आई हैव कॉल इट 2-2 स्ट्रेटेजी. मतलब अब 2 घंटा अटेंड करो सेशन. आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया है तो वहां पे नॉर्मली 2 घंटा एक दिन में होता है. उसके अलावा अब 2 घंटा और प्रैक्टिस करो, जो भी आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो 5 दिन तो ये होना चाहिए. उसके अलावा गाइज एक कुछ और पॉइंट्स में यहां पे आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लो. ठीक है, डू नॉट ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल डे. टारगेट 1 सब्जेक्ट डेली. ठीक है, टारगेट 1 सब्जेक्ट डेली. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? मतलब हर रोज एक सब्जेक्ट पे फोकस करो. जैसे आज और कल मैंने अगर आज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस लिया है तो आज और कल में मैं सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस करूंगा. परसों मैं सिर्फ वर्बल करूंगा. उसके बाद सिर्फ मैं एलआर वाला एक दिन रखूंगा. मैथ्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करो. तो ये 5 में से आप चाहो तो 3 दिन मैथ्स के लिए दे सकते हो, हम क्वांट कह देते हैं उसको. सो 3 days फॉर क्यूए, देन 1 day फॉर वीएआरसी. और इफ यू आर वीक एट दैट, अगर आप वीआरसी में वीक हो तो आपको शायद 2 दिन देने चाहिए. एंड देन 1 day फॉर एलआर. एलआर के लिए 1 day डेफिनेटली सफिशिएंट, बट आपको रेगुलरली ये सॉल्व करते रहना पड़ेगा. ठीक है. देन द अदर थिंग इज गाइज, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो माय सजेशन टू यू इज डोंट सेट द टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, रादर असाइन आवर्स. मतलब काफी लोग क्या करते हैं कि सोच के बैठ जाते हैं कि मुझे 30-40 क्वेश्चन इसके करने ही है. अच्छी बात है अगर आप 2 घंटे में 30 क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन होगे नहीं. तो आपने 2 घंटे असाइन किए तो 2 घंटे में जितना होता है उतना ही करो. जैसे आपने आज और कल आज 2 घंटे परसेंटेज के लिए असाइन किए, कल 2 घंटे आपने प्रॉफिट लॉस के लिए असाइन किए, तो बस 2 घंटे जितनी प्रैक्टिस हो गई कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ. नहीं तो क्या होगा, आप स्टक हो जाओगे. You first need to focus on completing the syllabus rather than solving more tough variety. Are you getting this point? And try to complete your syllabus by about Jan. Guys, ideally आपको Jan तक अपना syllabus complete करना चाहिए. Syllabus to be completed by Jan. ठीक है? Are we clear, guys? तो अगर आप जैन एंड तक सिलेबस कर लेते हो, फेब से आप सिर्फ पेपर्स लिखोगे और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और थोड़ा सा रिवीजन करोगे. अलॉन्ग विद दैट गाइस, संडे को आप असाइन कर सकते हो जस्ट फॉर योर रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. बट ये हर संडे आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस अभी लिखने की जरूरत नहीं है. सो अभी आप हर 15 दिन पे एक मॉक लिखते हो, एवरी 15 days 1 मॉक. दिस शुड बी गुड इनफ. मतलब अल्टीमेटली आई सजेस्ट 2 mocks पर मंथ फ्रॉम हियर ऑन. 2 mocks पर मंथ. अगर आप ये नहीं कर रहे हो दोस्तों कोई भी रीजन से, ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट मिसिंग, यू आर गोइंग टू मिस आउट द टारगेट्स. चांसेस आर वेरी हाई. अगर आप अभी से मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे यू विल मिस आउट. ठीक है सर, गिविंग कैट कॉम्बैट एवरी संडे इज गुड. नो ऋषभ, आई विल नॉट रेकमेंड यू माय डियर. वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट आप अपना मॉक टेस्ट लिखो, IIPMAT का मॉक टेस्ट लिखो, इंदौर का मॉक लिखो, SCT का लिखो, एनपैट का लिखो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि कॉम्बैट इज जस्ट फॉर 1 or 2 प्रैक्टिस यार. फिर उसके बाद में क्या है पता है, उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया है एंड इट अननेसेसरली प्रेशराइज यू. ओके, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा. उसकी जगह पे आप 2 घंटे का प्रॉपर पेपर लिखो और उसमें भले ही आप 10-15 क्वेश्चन करोगे वो चलेगा, बट आप टाइम लेके क्वेश्चन को करो रादर देन प्रेशराइजिंग योरसेल्फ. ठीक है, आपने देखा होगा कॉम्बैट में बहुत प्रेशर आ जाता है क्योंकि 90 सेकंड दिए जाते हैं, फटाक से खत्म हो जाते हैं. आप वैसे में काम मत करो, नहीं तो आपका माइंड सोचेगा नहीं ज्यादा. सर कैन यू प्लीज गिव अ टाइम टेबल फॉर 2023? प्रथम 2023 वालों के लिए कैसा है पता है, यू कैन जस्ट दैट कि आप 5 days की जगह पे यहाँ पे 3 या 4 days कर सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन बी स्लाइटली मोर रिलैक्स्ड. आपको जैन की जगह पे गाइज, इफ यू आर टारगेटिंग 2023, तो आपको जैन की जगह पे आप ये याद रखो, आपको मई तक पूरा सिलेबस एक बार आइडियली कंप्लीट करना चाहिए बस. तो विदाउट प्रेशराइजिंग योरसेल्फ टू मच, यू ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जबकि जो 2022 वाले हैं, खास करके जिनका बोर्ड्स चल रहा है, दे हैव वेरी टाइट शेड्यूल. उनको कम से कम 6 से 8 घंटे अपने बोर्ड स्टडीज के लिए देने होंगे और उसके अलावा 3 से 4 घंटे IPMAT प्रिपरेशन के लिए. सो 12 घंटे आपके यहाँ पे जाएंगे.
उसके अलावा अगर आपके स्कूल्स भी है तो 5 घंटे और तो 17 घंटे वहां चले गए, तो 7 घंटे आपके सोने के लिए बचे। मतलब इसमें मैंने खाना पीना तो गिना ही नहीं। ठीक है, चलो गाइज, हाउ टू प्रैक्टिस, वेयर टू प्रैक्टिस। तो सबसे पहला है कि आप मेरा जेनेसिस बैच हर रोज का अटेंड कर सकते हो एट 4 PM ऑन ऐप, दिस इज फ्री गाइज, एंड एट 6 PM ऑन यूट्यूब। 6 PM तो खास अटेंड करना गाइज। आज जिसने भी अटेंड किया था, हाउ मेनी ऑफ यू हैड अटेंडेड टुडेज जेनेसिस बैच, क्या आप मुझे बता सकते हो? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने आज का परसेंटेज का जो प्रैक्टिस क्लास था वो अटेंड किया था। अश्मिता ने अटेंड किया था, लक्ष्य वॉज देयर, ऋषभ, ऋषि, ओके, हर्षिता वॉज ऑल्सो देयर। ठीक है, ओके, और कोई? तो बाकी लोग भी अटेंड करना शुरू करो दोस्तों। मैंने आज अच्छे क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, तो वाई आर यू मिसिंग आउट दैट? यस प्रिया, करेक्ट। ठीक है, तो जिसने भी अभी से शुरू किया है तो आप पहले दिन से शुरू करो, क्योंकि मैं अभी आगे 4 दिन, कल मैं 6 बजे सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, कल आ जाओ, क्योंकि कल 4 बजे का नहीं है। फिर उसके बाद में 4 दिन के लिए मैं ब्रेक पे हूं, तो देयर विल बी नो सेशंस कंडक्टेड। तो आप क्या करोगे इन दिनों में? जेनेसिस का डे 1 से शुरू करो, पूरा नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा। एरिथमेटिक मेरे साथ आपका 15-20 नवंबर तक, अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट जैन तक तो आपका सिलेबस वैसे भी कंप्लीट होगा। साथ में अगर आप चाहो, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आप इनिशियली खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। इफ यू हैवंट एनरोल्ड एनीवेयर एंड लेटर ऑन इफ यू फील कंफ्यूज्ड, आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या प्रैक्टिस करूं, मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, देन यू कैन एनरोल इन प्लस यूजिंग माय कोड चार्ट so that you can also get my guidance. Are we clear? Okay, sure. Yeah, many of you are there in plus. For example, Lakshya is there, Ashmita is there, many of you are there. I think Harshita, I'm not sure, but yeah, because there is one Harshita, whether it's you or someone else. So there are many students out of you, right? Correct. Akshat is also there. Correct, Akshat. Madhura is also there. Yeah. So Rishi Anand is also there, of course. तो गाइज, हाँ, नहीं 9 मंथ ऐसा नहीं है भाई, मतलब उसमें कौन सा 90,000 ले रहे हैं? IIT JEE जैसे तो प्राइसेस है नहीं उसका। 12 मंथ्स का आपका 18,000 का सब्सक्रिप्शन है। बट जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछो, यू नो दे विल टेल यू कि आई इंटरेक्ट विद देम व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड सम सपोर्ट, आई इंटरेक्ट विद देम। क्लास में भी मैं उनको बताता हूँ कि आप ऐसे इंप्रूव करो, आपका ये वीक एरिया है, सो यू विल रिक्वायर समवन टू टेल यू। There is an age limit for IPMAT. Yes, Ritik, absolutely. The age limit is 20 years, if I'm not wrong. Please check. Right? Yeah. Thanks, Lakshya, for sharing your experience. Now, coming back to guys, the other part. तो guys, मेरा लक्ष्य बैच हुआ था, ठीक है, तो उससे भी आप रिफर कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल मैंने कराया था। देन बुक्स आप रिफर कर सकते हो। बुक्स कौन से? एक तो अरुण शर्मा फॉर क्वांट रिफर कर सकते हो, एंड पियर्सन पब्लिकेशन का जो IPM का बुक आता है, मेरे हिसाब से ये 2 बुक आपको इनिशियली सफिशिएंट है। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू अदर बुक्स अवेलेबल, तो आप ले सकते हो। फिर पास्ट ईयर पेपर्स, बट आपके केस पे पास्ट ईयर पेपर्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट IPM की वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, तो आप उससे कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट जब आप लेते हो, एनालिसिस करो। यू शुड हैव एनरोल्ड इन ईदर इन अनअकैडमी और समवेयर एल्स, बट मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए। कम से कम आपको 100 मॉक टेस्ट लगेंगे। क्यों 100? तो इसमें से 30 IPMAT इंदौर के होंगे जो आपको अनअकैडमी में मिलेंगे, फिर 30 IPMAT रोहतक के होंगे। इट्स गोइंग टू कम इन द डेज टू कम। समवन वाज सेइंग कि सर IPMAT के नए मॉक कब आएंगे? गाइज, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड लेट मी टेल यू, 3rd October is the first new mock coming up for IPMAT इंदौर। 3rd October को पहला मौका आ रहा है, ठीक है। फिर 10th October, देन 17th October, देन 24th October। हर वीक अभी आपको एक नया मॉक मिलेगा। अभी क्लियर? ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो दिस आर द सोर्सेस फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, अब आपके मंथली टारगेट्स क्या होने चाहिए? तो गाइस, QA और VA के फॉर्म में, Ritik, there is nothing like urgently. ठीक है, if you want to talk to me about plus subscription, then ping me. Otherwise, if you have any general query, post it on the group. ठीक है, please. If you are already a plus student, तो आपको पता ही होगा. Of course, I talk to you, right? Guys, because every single day there are many students, YouTube students, जो सिर्फ YouTube से prepare करें, they are expecting me to interact with them personally. That's not possible. Only if you are my plus student, who you have enrolled using code CHART10, then I'll be able to guide you guys because of the time constraint. I hope you understand. But now talking about QA and VA,
ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आप अभी आईपीमैट इंदौर का मॉक टेस्ट लेते हो, आईपीमैट इंदौर का अगर आप मॉक लेते हो तो उसमें आपको बहुत ही सिंपल टारगेट सेट करने, 8+8। मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न, ठीक है, 100 क्वेश्चन। गाइस जस्ट ट्राई टू गेट 8+8 करेक्ट, दैट्स इट। अटेम्प्ट ही 8 करो। काफी लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी, ठीक है ना, राइट? तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो एंड जस्ट 8 क्वेश्चन क्वांट के, 8 क्वेश्चन वर्बल के अटेम्प्ट करो, ठीक है? फिर आगे जाके देन ग्रेजुअली यू ट्राई टू इंक्रीज। तो ये मैंने आपको मंथली टारगेट दिए। तो सपोज आपने अक्टूबर में मॉक लिया, ये स्कोर आया, या अभी सितंबर में मॉक लिया, ये स्कोर आया, ठीक है? ओके, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यश, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज द स्ट्रेटेजी, ठीक है? मॉक से ही पता चलेगा, मेरे कहने से और आपके करने से, मतलब आप सिर्फ ऐसे ही सुनते रहोगे तो उससे पता नहीं चलेगा। आपको मॉक टेस्ट से देखना पड़ेगा, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू यू नीड टू रीच। Okay, fine. So can you please talk fully in English? It would be great. I am a student from Kerala. Okay. Yeah. Yash, please. That's correct. Yash, don't spam. Just post your message once. Yeah. And Surya, definitely. I usually speak in English, but in between we use a bit of Hindi. Ritik, you can. That depends what's your birth date. If your birth date is before. You can say March 2020, March 2021, then you can't appear because you will turn 21 then, right? But if your birth date is after April 2021, then I think you will be still 20, so you will be eligible. Okay, fine. So guys, then after 1 month in October, after a gap of 1 month when you take the mock, so your scores should be increasing like this. You should be able to attempt 4 more questions. This I am talking about Indore, क्योंकि in Indore you really don't need to score very high. But on the other hand, in Rohtak and IPMAT, guys, the papers are slightly on the easier side. Not very easy, but they are slightly on the easier side, especially the LR section. So you can improve a little more. Then you try to reach to 24, then try to reach to 27. Now 27 net correct. This is what I'm talking about, net correct. So for example, you attempted 32 questions. You got 28 correct, so it is as good as having 27 net correct. So 27 into 4, you will reach to 108, and then I'm sure gradually you will be able to reach to that 130, 140, which will be the cutoff if the paper is of 400 marks. If the paper is of 400 marks, then the cutoff goes up to around 140, right? Yeah, no, these are the number of questions, guys. What I'm writing is the number of questions, नेट करेक्ट, ठीक है? तो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, आईपीमैट इंदौर मॉक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, डिसम्बर. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रोड मैप अप टू डिसम्बर एंड देन यू कैन इंप्रूव. नंबर ऑफ नेट करेक्ट questions, ठीक है? These are the numbers I have displayed over here. Are you getting this point? Try to get only 16 question correct in the first mock, then about 20 question correct in third mock, because every month I am suggesting you to write 2 mocks. So in first 2 mocks, try to get 16, 17 correct, then 20, 21 correct, then 24, 25 correct. This is how you should improve. Okay. Fine. So guys, this is what I had to share. Of course, if you have any other query, you can post it on the group also. Right. So I hope Surya, you have understood that. Now Ritik, yes, Rishabh is saying, sir, is this marks or question? I have mentioned that. Ritik is asking another question, sir. Any alternative for IPMAT? What does it mean by alternative for IPMAT? I didn't get your question. Ishan is saying, sir, 2 or 3 months is enough for IPM preparation. Absolutely no, Ishan. If you are an average student, if you are someone who is very superb at quant and verbal and all, you have lots of reading habit and all, probably even 1 month is sufficient, ठीक है? But not for an average student. तो start preparing from this point of time, ठीक है? सर लास्ट में एक बार फिर से आपके क्लासेस के टाइम बता दीजिए. डेफिनेटली
I'll mention that. Rishabh, GIPMAT or IPMAT Rohtak. Okay. So some information about Arun Sharma. क्या RES क्या है? Reasoning. So why the Rohtak marks goes on a higher side? Because two reasons. Lakshya, Rohtak has 120 questions and the paper is of 120 minutes. But if you look at it, has that typical LR section. And you know it is slightly easy to score in LR section. Second, level of difficulty is also lower. It's slightly on the lower side. So definitely the cutoff will go up. Right? Okay. Sir, how many levels from Arun Sharma? Okay. For timing LOD 1 and 2. Then gradually once you have completed the syllabus, jump to LOD 2 and 3. Okay? For timing 1 and 2. Okay. Then 2 and 3. That should be your strategy. Right? Okay, so guys, you can access my previous video from here. Keep learning with me. And someone mentioned about my schedule. So here is my schedule, guys. So you can attend the 6 p.m. session, this 4 p.m. session. And no, this is not going on right now. I keep coming up with new series. So even in 12 p.m. session, you will get some more practice sessions. And apart from that, if you are willing to join my plus batch, so I have my plus batches, my new LRDI courses coming up, my quant course is going on. So I keep adding new courses to the batch, right? So ultimately you can expect your syllabus to get over by around Jan for sure if you are in plus. Is that point clear? Fine guys, so I hope you all would have found it useful. Please keep learning with me. Make sure you have joined this group. And yes, I conduct the session on Unacademy CAT channel, not on CAT for MBA channel, guys. This is a different channel. So I conduct on Unacademy CAT channel, just for your information. So the best way is make sure that you are connected. You have joined my Telegram group. The link has been provided in the description. That's it guys. Keep learning. Bye-bye. Take care.